بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 ستمبر جمعے کا روز 3:45 بجے کا وقت سپہر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین اکرام، آغاز میں یہاں سے کر رہا، میں سر تپا پاکستانی ہوں۔ میری سب سے پہلی محبت اور سب سے پہلا عشق میرا ملک پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی پارٹی اور پارٹی کی کوئی شخصیت۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ اگر وہ معاہدہ جو چند روز قبل پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہوا، مشترکہ دفاع سے متعلق معاہدہ، اگر یہ پاکستان کے حق میں ہوتا تو میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلا شخص ہوتا جو اس کے اندر پائی جانے والی اچھائیاں آپ کے سامنے رکھتا۔ اور آج جو ملاقات ہوئی ہے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر، ان تینوں کی اگر یہ پاکستان کے حق میں ہوتی تو سب سے پہلے میں داد و تحسین کے ڈونگرے برساتا ان پر، لیکن چونکہ یہ دونوں معاہدے اپنے اندر پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک پہلو رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے والے لوگ، جنہیں اچھے والا کہا جاتا ہے، یہ وہ سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنا فرض کفایہ پورا کرنے کے لیے تعریف کر رہے ہیں کہ جناب ہم چونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہے اس لیے ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ان دونوں معاہدوں میں، ان دونوں واقعات میں قطعی طور پر کوئی نہیں۔ ناظرین اکرام، میں عمر کے اس حصے میں یہ مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا۔ آئیے اب ورلڈ بینک نے رپورٹ پیش کی ہے، آئی ایم ایف نے ایک نتیجہ نکال کر پاکستانی حکومت کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کے 50% عوام غربت کی لکیر سے، ادھر سے جہاں زندگی گزارے تھے، غربت کی لکیر پار کر کے اس طرف جا گرے ہیں۔ 50%، اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے ناظرین اکرام؟ 13 کروڑ، تقریباً 13 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے اس طرف۔ غربت کی لکیر سے اس طرف کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، یا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، پرنم آنکھوں سے اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے، ان کے بدن پر کٹے پھٹے لباس کو دیکھ کر اپنا سینہ چھلنی کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو دوائی، ہسپتال اور ڈاکٹر یہ 880 واٹ کی ننگی تار کے برابر انہیں دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کتنے؟ 13 کروڑ عوام۔ اور اس کے ساتھ آپ کے ملک سے لوئر مڈل کلاس ختم ہو گئے۔ یہ جو اب غربت کی لکیر سے اس طرف گر رہے ہیں، یہ لوئر مڈل کلاس ہے۔ اب آ جائیے مڈل کلاس کی طرف، پھر آپ کو نتیجہ دوں گا کہ اس ملک میں ہونے والا کیا ہے، یہ انٹرنیشنل جو کھیل جاری ہے یہ کیا ہے۔ ایک چیز میری ساری اس گفتگو کے پس منظر میں ایک بڑا سا لکھ کے رکھ لیں، پاکستان کو 2030 سے پہلے ختم کرنا، عالمی نقشے سے اس کا وجود مٹانا، یہ ہے ایجنڈا۔ یہ گولی دکھا کر، بندوق کی نالی دکھا کر ہو یا مسکراہٹیں پھینک کر، ایجنڈا یہی ہے۔ اب آئیے مڈل کلاس کا کیا حال ہے۔ مڈل کلاس اس وقت سب سے زیادہ اذیت اور عذاب میں سے گزر رہی ہے۔ یہ نسل در نسل وہ لوگ ہیں جو اپنے گلی محلے، گاؤں، کریے، کوچے میں کھاتے پیتے لوگ گرے جاتے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اندر ان کا کیا حال ہے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، غمی خوشی میں ان کی شرکت باوقار، پروکار، کنسیڈریبل ہے، جس کی وجہ سے یہ عزت دار مانے جاتے، کھاتے پیتے لوگ مانے جاتے ہیں۔ ان کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے ناظرین کرام۔ انہیں 24 گھنٹے اداکاری کرنی پڑتی، بکھرے ہوئے خوابوں کے ساتھ، اجڑی ہوئی دنیا کے ساتھ، سکڑ چکے وسائل کے ساتھ، معاشی تنگ دستی نہیں، پرلے درجے کی بدحالی کے ساتھ انہیں سفید کپڑے آج بھی پہننا پڑتا، انہیں چہرے پہ آج بھی اپنا وقار رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اداکاری کرتے کرتے یہ طبقہ تھک چکا ہے، اور یہ بھی ختم ہو کر غربت کی لکیر کے اس پار جانے والا، غربت کی اس لکیر سے جو پار جائے گا، وہاں ایک خاص جبر کے تحت، مثلا یہ جو آپ سردیوں میں کپڑے پہنتے ہیں، آپ سے کوئی کھینچ کے تو نہیں اترواتا۔ جب حدت بڑھتی ہے، سورج چمکتا ہے، تو پہلے آپ اوور کوٹ اتارتے ہیں، پھر سویٹر اتارتے ہیں، پھر گرم شرٹ اتارتے ہیں، اس کے بعد آپ ململ کے کرتوں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جبر، ماحول کا ستم مجبور کر دیتا ہے لوگوں کو مانگنے پر، نہیں مانگیں گے تو مریں گے، اور وہاں غم ہے، غصہ ہے، اور غربت کی لکیر کے اس پار جو اجتماع بنتا چلا جا رہا ہے، ان کے بچے پتہ کون ہیں؟
मैं बताता हूं आपको। सड़कों पे फिरते हो तो इंडस्ट्रियलिस्टों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत लंडे की पेंटें पहन के, लंडे की टी शर्टें पहन के ऐसे लगता है कि बम्बे के हीरोज आ रहे हैं। लेकिन घरों की ये हालत है कि चूल्हे बुझे हुए हैं, माँ बीमार है, बाप बीमार है, दवाई तक उनके वसाइल नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? थोड़ी देर ठहर जाइए, थोड़ी देर नहीं, बस सब तो हुआ के हुआ। वो है मंजर जो मैं आपको दिखाता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम, के एक अनार की फूटने वाली है, कुछ भी नहीं बचेगा। ये भूल जाइए ने, ये कल्फ लगी वर्दियां, ये शेरवानियां, ये लगी हुई टाइयां, ये अदाकारी करते हुए गुलिवर्स वर्ल्ड के बौले, और ये टीवी स्क्रीन पे आकर बक बक करने वाले बकाऊ माल नाम सहाफी, करतूत उस बाजार की पैदाइश, मर्दों से भी ज्यादा बदतरीन। ये सब मंजर एक अजीब पाकिस्तान के अंदर एक मंजर है नाज़रीन इकराम। बेड़ा घर करके रख दिया है इन्होंने मुल्क का। कर्ज ले लो, ये लोगों में ट्रैक्टर बांट दो, स्कूटियां बांट दो, लैपटॉप बांट दो, कर्जे के नाम पे मुफ्त पैसे दे दो, ये सड़कें बना दो, इस पे फूल लगा दो, इस पे सब्जा फैला दो। वो मालिक जिनका GDP आसमानों को छू रहा है खुद हैरान है वो क्या करे इस मालो दौलत को। उन मुल्कों में जो तारकोल की सड़कों पर गाड़ी नुमा वो कोई चीज चलती है, वो लाहौर की सड़कों पे, फैसलाबाद की सड़कों पे देखो 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 कर्ज आप पर और मुझ पर। IMF की आज की रिपोर्ट क्या है नाज़रीन इकराम? आज की अभी 2 घंटे पहले मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि ये जो आपने हमें नामा अमाल अपना दिया है, इसमें आपने वो टैक्सेस लगाए ही नहीं जिससे हमारी रिकवरी हो सके। आप हमारे कर्जों की किस्तें नहीं, हमारे कर्जों का सूद अदा कर सके। अब टैक्सेस और लगने जा रहे हैं। आपको पता है कि 1 लीटर पेट्रोल जब आप डलवाते हैं आपने मोटर बाइक में 96 यानी 100 रुपया समझ लीजिए, आप सिर्फ टैक्स देते हैं इन्हें। अब इन्होंने पुलिस को कहा है कि लोगों की जेबों से पैसे निकालो, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसका चालान कर दो 3000 रुपया। हाँ, लाइसेंस बनवाना अच्छी चीज है, हर शख्स के पास लाइसेंस होना चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सवाल ये है कि नीयत क्या है? नीयत सिर्फ ये है, ये नहीं कि कानून की हुक्मरानी हो, ये नहीं कि एक्सीडेंट्स कम हो, ये हरगिज नहीं कि हर शख्स माहिर हो जो गाड़ी या मोटर बाइक चला रहा है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा चालान हो। लोग आए इस महीने लाइसेंस बनवाए, लाइसेंस इसलिए नहीं बनवाए कि ये कानून की कोई वो पूरी कर रहे हैं, वो कोई खला भर नहीं, ताकि पैसे आए, वो पैसे लगाए अपनी तशहीर पर। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क उजाड़ के रख दिया है। क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं बोलते, ये ले डूबेंगे मुल्क को। आज की मुलाकात का जरा अहवाल सुनिए। एक तो ये है कि इस जोकर को किसी ने कहा इमरान खान जो है वो ऐसे ऐसे इशारे करके मिलता था, आप तो ऐसे बैठे होते हैं। अब जोकरों की तरह वो देख रहा है हैरानी से, आपने वो देखी होगी ये टीवी स्क्रीन पे मुलाकात, इशारे कर रहा है। अंदाजा कर ले, मजाक सर से लेकर पैरों तक मजाक, तज़हीक इस कौम की, आसमानी अजाब आप पर और मुझ पर और 26 करोड़ अवाम पर, जिसका नाम है शहबाज जोकर। वो वहां है और यहाँ दफ्तर से जो रिलीज जारी हुई है वो क्या है कि ट्रंप और शहबाज के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के फील्ड में तावन बढ़ाने पर बात हुई है। नेज पाकिस्तान की जमीन के पेट के अंदर, उसकी गहराइयों के अंदर, उसके सीने के ऊपर जितनी भी मादनियात हैं, अमेरिका को दावत दी गई है कि आए जनाब हमारे साथ मिलकर, यहाँ तो खजाने भरे हुए, आए तशरीफ लाए, इकट्ठे मिलकर इन्हें तलाश करें। इकट्ठे मिलकर तलाश करने से मतलब क्या है कि 10%, जिस तरह ये अरब रियासतों की आजादी से पहले 10% पेट्रोल का इन्हें दे दिया करते थे शयूख को, और बाकी 90% लेकर उड़ जाया करते थे। इसी तरह इन्होंने भी ये मुआहदा कर लिया है कि इसी के लगभग कोई परसेंटेज होगी, बाकी ले जाए, सोना ले जाए, ज़मरद ले जाए, लालो गोहर ले जाए, गैस ले जाए, तेल ले जाए, जो कुछ भी निकलता है वो आपका आ जाए। ये बलूचिस्तान में रद्द-ए-अमल किस चीज का है? इसी चीज का रद्द-ए-अमल है। अब वो बलूचिस्तान नहीं रहा जब कोई नाम नहाद हवालीन और कोई बद किरदार और बदकुमाश और लालची और कौम के मुखालिफ सरदार मरकज के साथ मिलकर सौदे किया करते थे अपनी जमीन के और अपने लोगों के। नहीं, अब पढ़ी लिखी बलोच कौम है, अब वो समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए इररेलेवेंट हो गए सारे सरदार, सारे हवालीन। उनके लिए, इन सारे बलूचिस्तान के हवालीन और सरदारों के लिए मारंग बलोच अकेली काफी है, लड़की बेचारी निहत्ती वो काफी है। उसके साथ जो बलोच मोहब्बत करते हैं, पश्तून बलूचिस्तान के मोहब्बत करते हैं, उससे महरूम होकर रह गए हैं ये सारे सरदार और सारे ये हवालीन। ये मुआहदा क्या है, ये अपने अंदर इंतहाई खौफनाक पहलू रखता है। ये बलूचिस्तान की अलहदगी के अमल को मजीद तेज करके रख देगा। आप बादशाह हैं, आप देखते हैं और आप सुनते हैं, आपने देखा भी नहीं, गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना भी कि बाकायदा तौर पे एक माहौल पहले से तैयार किया जा रहा था। वो क्या कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। ये जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में और KPK में, ये हिंदुस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान करवा रहा है। इसका मतलब ये है जो 13 में हुआ वो भी अफगानिस्तान ने बम गिराया। ये माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है?
अफगानिस्तान के खिलाफ, वो मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन इकराम मुकम्मल जिम्मेदारी से। वो मेरे सियालकोट का एक बैंक क्लर्क है, वो आज तक भी बैंक क्लर्क है ज़हनी तौर पे, लेकिन वज़ीर दिफा अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह मिन ज़ालिका। जी ये तो हमारे अज़ली दुश्मन हैं ये अफगानिस्तान वाले। आपने सुन लिया क्या कहा ट्रंप ने, और जो कहा उसकी मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूंगा, सुना कीजिए नाज़रीन इकराम। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे खुशी है अगर 10 लोग भी मुझे पूरी की पूरी वीडियो सुन लें तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी इस मेहनत की अदायगी हो गई। बगराम, मुझे बगराम चाहिए, किसने कहा, और मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा, ट्रंप ने। अब बगराम लेकर कौन देगा? ये जो इस वक्त बैठे हुए आपके जनरल साहब और आपके हारे हुए 70,000 वोटों से मरदूद करार पाया शख्स, वो वजीर आजम है। अब आप अपने बारे में सोचिए कि आप हैं क्या, मैं क्या हूं कि कबूल किए बैठे हैं। मैं तो जिस दिन से ये हुकूमत कायम हुई है मैं तबर्रा भेजता चला रहा, और आज तक बड़े नर्म अल्फाज सहते रही। ये एक नई जंग आपके पल्ले डालेंगे ये अंतरी, फिर देखिएगा मार्केट में जाना मुहाल हो जाएगा। यहाँ जब ये अफगानिस्तान के खिलाफ कोई हरकत करेंगे, पूरा इंतजाम उनके पास भी है, वो क्यों रुकेंगे? और मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये कभी फतह हासिल नहीं कर सकते, इन्हें शिकस्त होगी, इनके अजाइम बर्बाद होंगे, क्योंकि तारीख गवाह है। मैं बताता चला रहा हूं, बरतानिया आया मुंह की खा कर गया, रूस आया टूट कर रह गया, अमेरिका आया रातों रात ऐसे भागे जैसे सुने गधे के सर पे कभी सींग हुआ करते थे, इतने में उड़ गए थे, उस तरह उड़ गए। बगराम भी छोड़कर, काबुल भी छोड़कर, पूरा अफगानिस्तान छोड़कर, अब बगराम याद आ गया है। क्यों? मैं बताता हूं। वो इसलिए नाज़रीन इकराम कि चीन के एटमी प्रोग्राम पे वो नजर रखना चाहते हैं। कोई इलाका नहीं, बगराम बेहतरीन जगह है, अफगानिस्तान बेहतरीन जगह है। वहां से कुछ भी नहीं तो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर वो जगह है जिसे आराम से देखा जा सकता है आंखों से। बास तो अपनी आंख से देख सकता है बगैर किसी कैमरे के, 100 मील के फासले पर। तो इनके पास जो हसास कैमरास हैं, ड्रोन्स हैं, जो वसाइल हैं, वो अगर यहां बैठ जाए अमेरिकन तो बाथरूम में जाते हुए किसी साइंसदान, एटमी साइंसदान तक को देख सकते हैं। ये मौत पड़ी हुई है कि इन्हें वहां जगह चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं नाज़रीन इकराम, फिर मैं कहूंगा कभी कभी सुन लिया कीजिए, तारीख को जानना आपके लिए जरूरी है। और ये मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि वो लोग जो एंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो किताबें लिखते हैं, जो उनके लिए, चूंकि मेरा बराए रास्त एक ताल्लुक रहा है अफगानिस्तान से और अफगान इश्यू से, मैं कहता चला आया हूं कि मैं इस पर लिखता रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट रहा है। हाँ आइए, उस वक्त रूस सोवियत यूनियन कहलाता था। सोवियत यूनियन के साथ फौज के जिस हिस्से के ताल्लुकात थे, उन्होंने दाऊद का कब्जा करवा दिया अफगानिस्तान पर, जाहिर शाह जलावतन, फिर दाऊद को मरवा दिया। नूर मोहम्मद तरकई, एक दरवेश सिफ्तार, हमने घर देखा उसका काबुल में, 1.5 कमरे का, अब भी 1.5 कमरे का, जहां उसके पोते रहते होंगे उनके बच्चा। नूर मोहम्मद तरकई, अब हुआ क्या, अब हफीजुल अमीन ने, उसका ख्याल था कि सोवियत यूनियन मुझे कबूल कर लेगा, उसने अपनी ही पार्टी के दरवेश सिफ्त रहनुमा अफगानिस्तान के सदर नूर मोहम्मद तरकई का अपने हाथों से गला ढूंढकर टांगों से पकड़वाया, अपने साथियों से उसे जान से मार दिया और खुद इक्तदार पर कब्जा कर लिया हफीजुल्लाह अमीन ने। उसकी इस हरकत को सोवियत यूनियन ने बुरा समझा। उसे पता था कि सोवियत यूनियन मुझसे राजी नहीं। उसने सऊदी अरेबिया के जरिए अमेरिका से राब्ते कायम कर लिए। उसने अमेरिका को कह दिया है जनाब यहाँ मैं आपको अड्डे दे देता हूँ। ये खबर हफीजुल्लाह अमीन के साथी ने पहुंचा दी। वो कामरेड था, सच्चा कामरेड था कि भाई ये तय पा गया है सऊदी अरेबिया के जरिए अमेरिका के साथ, और ये अड्डे देने लगा है यहाँ। ये सुनते ही रूस ने यानी सोवियत यूनियन ने अपनी फौजी उतार दी। पहले तो इसका गला काटा और वो उड़ाया। वो अड्डे तो अमेरिका को ना मिल सके, अब अमेरिका को अड्डा चाहिए। वो रिएक्शन क्यों था अमेरिका का, क्यों अड्डा चाहिए था? वो इसलिए कि ईरान में उसके अड्डे मौजूद थे, लेकिन इमाम हुमैनी जब वापस आए, इनकलाब आया, तो सारे अड्डे वड्डे खत्म हो गए। हफीजुल्लाह अमीन ने ऑफर कर दी कि जनाब आए मेरी हिफाजत करें रूस के खिलाफ। उन्होंने कहा जी फिक्र नहीं कर, हम आ रहे हैं। रूस ने कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी पे साइन करके वहां से ये लोग आ रहे हैं। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, भले मैं अपने लिए ही इस पे वीडियो करूं कि ये इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान के हवाले से। ये नहीं है वो तो हो रहा है, आप भी जानते हैं। ये इजराइल, गजा की पट्टी, इजराइल का मुस्तकबिल क्या है, इजराइल के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा और ये क्या करने जा रही है पाकिस्तानी। एक बात याद रखिए उस वीडियो के आने से पहले, जो कुछ भी इजराइल करता है आप अपने ईमान का हिस्सा रखें। जिस तरह सूरज को देखकर, ये कोई मजहबी ईमान नहीं, यकीन, जिस तरह सूरज देखकर आपको पता होता है कि ये रात नहीं ये दिन है, इसी तरह जो कुछ भी इजराइल कर रहा है या करने जा रहा है, अमेरिका की आशीर्वाद और उसकी पुष्टपनाही में कर रहा है, करेगा। आज की वीडियो यहीं तक, इक्तफा कीजिए इस पर। मिलते हैं अगली वीडियो, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।